Assalamu alaikum. Today we will start the urinary system, right? First we'll go for the introduction. Urinary system, also known as the renal system, because renal is the biological name of kidney. Urinary system refers to the structures that produces and conduct urine to the point of excretion. These are the organs that are involved that makes the urinary system. There is a pair of kidney, a pair of ureters, urinary bladder, and the urethra. That is the exit point of the urine. This diagram is showing the human urinary system. There is two pairs of kidney, right and left, two pairs of ureters, urinary bladder, and the urethra, and along with this there are certain arteries and veins that are responsible for the blood supply to the kidneys. So first we'll talk about the kidney. The human body normally has two paired kidney, one on the left and one on the right side. The functional unit of kidney, the smallest functional unit of kidney, is known as nephron, and urine is formed actually by the nephrons, right? And these are very smaller structures. This is the location and external anatomy of the kidneys, that they are located retroperitoneally in the abdominal region, right? Lateral to the vertebral कॉलम जो होते हैं या वर्टिब्री जो हमारे होते हैं उनकी लेटरल साइड्स पे हुआ करते हैं. The average size and thickness and width of the kidney is, they are 12 centimeter long, 6 centimeter wide, and 3 centimeter thick. Kidney is protected by three connective tissues, layers of three connective tissues, right? That is renal fascia. Renal fascia is attached to the abdominal wall. Adipose capsule, this is a fat cushioning, that is kidney is overlapped by that cushion of fat. And the third one is renal capsule. ये fibrous sac हुआ करता है और ये किडनी को ट्रॉमा या डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया करता है, प्रोटेक्ट किया करता है, राइट. दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, राइट. इसके अंदर outer part is known as cortex, inner part is known as medulla. Renal capsules इसके इनर पार्ट में हुआ करती हैं. अ पार्ट ऑफ दैट इज़ माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, रीनल कॉलम, रीनल पायरामिड. ये जो ट्रायंगुलर शेप आपके पास या कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहे, दीज आर नोन एज रीनल पायरामिड्स. दिस duct that is collecting the urine is known as ureter, right. There is a groove, एक गड़ा हुआ कर एक बीच में कलेक्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ नोन एज रीनल पेल्विस, ठीक है. और इन पॉइंट्स का जो इनिशिएटिव पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, दैट इज़ नोन एज रीनल पेपिला, राइट. इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो एक गड्ढा बना हुआ है रीनल का, दिस इज़ नोन एज हाइलम एंड हाइलस, ठीक है. ओके, किडनी एनाटॉमी की बात करते हैं. रीनल पैरेन्काइमा, मतलब हम रीनल की किडनी की आउटर साइड की बात करते हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू जोन्स, आउटर कॉर्टेक्स, outer portion is known as cortex, and the inner portion is known as medulla. This is another diagram of the internal structure of the kidney. Anatomy of the kidney की further detail की बात करते हैं. Superficial outer cortex and inner medulla. Medulla consists of 6 to 18 renal pyramid. मैंने कप शेप स्ट्रक्चर्स अभी थोड़ी देर पहले बताए थे. While renal cortex is composed of roughly 1.25 million nephrons. Nephrons क्या थे? The smallest unit of the kidney that actually is responsible for the formation of urine. So, renal sinus की बात करते हैं. Renal sinus is surrounded by renal parenchyma. It contains blood and lymph vessels, nerves, urine collecting structures हुआ करते हैं इसके अंदर. जबकि हाइलस की मैंने बात की थी, जो कि ग्रूव था, ये कॉन्केव surface हुआ करती. It also contains different types of vessels and nerves. This is the entering point for the nerves and vessels, right? Entrance and exit point for the nerves and vessels, right?
मेजर एंड माइनर कैलिसिस थे अलॉन्ग विद द पेल्विस ड्रेन। पेल्विस ड्रेन मीन यूरेटर के साथ ये मेजर और माइनर कैलिसिस मौजूद होते हैं। ये टर्म्स आप लोगों को अगर समझ में नहीं आती, यू कैन अगेन गो टूवर्ड्स द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी, ठीक है। आप उसको मोर देन वन टाइम देखेंगे तो आपको इन तमाम पार्ट्स के बारे में समझ आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज द डिटेल ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द किडनी। Accurate artery and vein that are supplying the blood to the renal pyramids in gray, these are the pyramids, right? I am again showing you this, ये हमारे पास renal pyramids हैं। उनको जो arteries और veins blood supply कर रहे हैं, they are known as arcuate, इंट्रोलोब्यूलर आर्टरी एंड वेन, ये लोब्स को दे रही हैं, आउटर पार्ट को ये ब्लड सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। रीनल वेन एंड आर्टरी, ये मेजर वेन हैं दैट आर आर्टरी और वेन हैं दैट आर सप्लाइंग ब्लड, और जो वेस्ट ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लेकर भी जा रही हैं, ठीक है। दिस आउटर पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट ऑफ किडनी इज नोन एज मेडुला, ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड्स। Nephron. Nephron mean we are talking about the smallest structure of the kidney, right? These are actually the functional unit of the kidney, and there are approx 1.2 million nephrons are present per kidney. एक किडनी के अंदर 12 लाख नेफ्रॉन हुआ करते हैं, राइट। 3 मेन पार्ट्स हुआ करते हैं नेफ्रॉन में। ब्लड वेसल्स हुआ करती हैं, रीनल कॉर्पसल हुआ करते हैं, और रीनल ट्यूब्यूल हुआ करते हैं। इन द फर्दर स्लाइड्स आई विल शो यू द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, राइट। ब्लड वेसल सर्विसिंग किडनी की बात करते हैं। वो ब्लड वेसल जो कि किडनी को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, उनके अंदर क्या क्या है, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ग्लूमेरुलस हुआ करता है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, राइट। इसके ऊपर हम फर्दर आगे भी बात करेंगे। दिस इज़ अ होल नेफ्रॉन, राइट। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर ये ग्लूमेरुलस कैप्सूल है, आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके अंदर रेडिश कलर का बोमेंस कैप्सूल है, राइट। रीनल कॉर्पसल्स भी हैं इसके अंदर, और इस सारी की डिटेल हम लोग फर्दर जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उनके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ओके। ओके गाइस, ग्लूमेरुलस की बात करते हैं। ये एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है ऑफ द नेफ्रॉन। दिस फेनेस्ट्रेटेड द कैपिलरीज, इसके अंदर बहुत सारी कैपिलरीज हुआ करती हैं। कैपिलरीज फिल्ट्रेशन occur in glomerulus and this initiates the production of urine. फिल्ट्रेट लेक्स सेल्स एंड प्रोटीन्स, वो जो फिल्ट्रेट हमारे पास आता है आफ्टर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, उसके अंदर सेल्स नहीं हुआ करते, उसके अंदर प्रोटीन नहीं हुआ करते, और ये जो फिल्ट्रेट है ये ड्रेन होता है इफ्रेंट आर्ट्रियोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये पास ऑन होता है एक पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज से, और उसके बाद ये सारे का सारा जाता है रीनल वेन्स के अंदर, ओके। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन, कि यहाँ पर ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। दिस इज़ बोमन्स कैप्सूल, और इसके अंदर ये जो कैपिलरीज का एक पूरा बंच बना हुआ है, दिस इज नोन एज ग्लूमेरुलस, और ग्लूमेरुलस के अंदर जो कैपिलरीज का बंच है, दैट बंच इज नोन एज ग्लूमेरुलर कैपिलरीज, राइट। इफ्रेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे एंटर हो रहा होता है, एफरेंट आर्ट्रियोल एंटर होता है, और इफ्रेंट जो होता है वो एग्जिट हो जाता है। यहाँ से एंटर होता है ब्लड, इस पूरे का बंच बनाते हैं, और उसके बाद यहाँ से आउट हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे होल्ड ऑन, ये फर्स्ट पॉइंट जो है, जब जब ये ब्लड एंटर हुआ है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा। इस पार्ट के अंदर रीअब्जॉर्प्शन को, अगर रीअब्जॉर्प्शन मीन कि कुछ मिनरल्स को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, प्रोटीन्स वगैरह को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यूज़फुल जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिक्रीशंस होती है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स की, जो कि पीएच वगैरह बैलेंस करते हैं यूरिन की, और उसके बाद इस पॉइंट से एक्सक्रीशन हो जाया करता है, ठीक है। और ये जो फिल्टर ब्लड है, फिल्टर्ड ब्लड आफ्टर फिल्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ से निकल जाता है
एंड दिस पोर्शन इज़ नोन एज पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज फिर रीनल वेन के थ्रू ब्लड को लेकर यहाँ से आउट हो जाया करती हैं, ठीक है। सो यूरिनरी एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन इज़ इक्वल टू फिल्ट्रेशन, माइनस पहले फिल्टर होगा उसमें से माइनस हो जाता है कुछ सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्प्शन के बाद, और बाकी जो बच जाता है वो सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। रीनल कॉर्पसल की बात करते हैं। रीनल कॉर्पसल की कॉम्पोजिशन यहाँ पे दी हुई है। इट इज़ कंपोज ऑफ ग्लोमेरुलस एंड द बोमन्स कैप्सूल। मैंने दोनों को आपको शो किया है। कप शेप स्ट्रक्चर है, उसको बोमन्स कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल कहते हैं। और इसके अंदर जो कैपिलरीज का पूरा एक गुच्छा बना होता है दैट इज़ नोन एज ग्लोमेरुलस। द रीनल कैप्सूल इज़ द बिगिनिंग ऑफ द नेफ्रॉन, राइट, and it is the nephron's initial filtering component that is does the filtration of the blood, right, and extract the waste material from the blood. The glomerulus is a capillary tuft. Capillary tuft mean capillaries का एक पूरा गुच्छा होता है that receive its blood supply from efferent arteriole of the renal circulation. Renal circulation mean circulation of blood in the kidney. किडनी के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, तो उसी एफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है वो ब्लड रिसीव करता है। इट मेक अ टफ्ट इन द वोमेंस कैप्सूल, उसकी फिल्ट्रेशन करता है और उसके बाद फिल्टर ब्लड को एग्जिट करवा दिया करता है, ठीक है। द ग्लूमेरुलर ब्लड प्रेशर प्रोवाइड्स the driving force for water and solutes to be filtered out of the blood and into the space made by the Bowman's capsule, right? कि जब हम एफरेंट आर्ट्रियोल की बात करते हैं तो एक प्रेशर के साथ ब्लड एंटर हो रहा होता है, और ये जो प्रेशर होता है यही ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड करता है कि बोमन्स कैप्सूल में से जो ब्लड है वो फिल्टर आउट हो जाए और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे एक्सक्रीट आउट हो जाएं, ओके। इसके जब ये ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये दो चीज़ें फिल्टर्ड आउट हो जाएं और फिल्टर होके बोमन्स कैप्सूल से नीचे की तरफ मूव कर जाएं, ठीक है। After the filtration process, the remainder of the blood passes into the efferent arteriole. The diameter of efferent arteriole is smaller than that of efferent arterioles, increasing the hydrostatic pressure in the glomerulus, right? बोमन्स कैप्सूल की बात करते हैं। द बोमन कैप्सूल ऑल्सो नोन एज ग्लूमेरुलर कैप्सूल, क्योंकि ये ग्लूमेरुलस के नीचे हुआ करता है और ग्लूमेरुलस को सराउंड किए हुए होता है, राइट। इट इज़ कंपोज ऑफ विसरल inner layer formed by specialized cells, and those specialized cells that make the Bowman's capsules are known as podocytes. पेराइटल आउटर लेयर कंपोज होती है इसकी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पर। स्क्वामस एपिथेलियम क्या होते हैं उसके लिए रिकॉल करें चैप्टर 4 ऑफ क्लास 9, ठीक है। उसके अंदर स्पेशल टाइप की टिश्यूज़ की बात हुई थी जिसमें स्क्वामस एपिथेलियम भी हुआ करते हैं, राइट। फ्लूइड फ्रॉम ब्लड in the glomerulus are filtered through the visceral layer of the podocyte resulting in the glomerular filtrate। कि हमने जो उसकी बोमन्स कैप्सूल की बात की थी तो वो इस शेप का था, राइट, और इसके अंदर पूरा एक गुच्छा बना हुआ था ब्लड वेसल्स का जिसके थ्रू ब्लड फिल्टर होता है, राइट। और विस्लर लेयर ऑफ पोडोसाइट्स, हमने कहा कि बोमन्स कैप्सूल को जो सेल्स बना रहे हैं दैट आर नोन एज पोडोसेल्स, उन पोडोसेल्स से ये फिल्टर्ड सब्सटेंस जो होता है जिसमें पानी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं, वो नीचे आ जाया करता है, ठीक है। सो नोट की बात करते हैं। ये बॉटम लाइन है कि रीनल कॉर्पसल काम क्या करता है और ये किस चीज़ पर मुश्तमिल हुआ करता है, राइट। ग्लूमेरुलस प्लस कैप्सूल। ग्लूमेरुलस वो बंच ऑफ कैपिलरीज और कैप्सूल उसका नीचे वाला पार्ट। ग्लूमेरुलस इज इनक्लोज इन टू लेयर दैट आर नोन एज ग्लूमेरुलर कैप्सूल, या ग्लूमेरुलस के नीचे जो बाई लेयर्ड कैप्सूल हुआ करता है दैट इज नोन एज बोमेंस कैप्सूल, राइट। फ्लूइड फिल्टर्स फ्रॉम ग्लूमेरुलर कैपिलरीज is known as glomerular filtrate. This fluid or filtrate collects in capsular space, and this from this capsular space fluid flows into the renal tubule. Renal tubule वो
ट्यूब है छोटी सी, जो कि यहाँ से फिल्टर होने वाले सब्सटेंस को आगे लेकर जाएगी, राइट। ये रीनल कॉर्पसल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ग्लोमेरुलस आप लोग को उसकी पेराइटल लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ द पेराइटल लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। ये एफरेंट आर्टरी है जो कि इन कर रही है ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे सारे का सारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा। ये एरोज आपको शो कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ से जो फिल्टर्ड सब्सटेंस है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, जबकि आफ्टर फिल्ट्रेशन जो बाकी ब्लड है वो यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक। ये पोडोसाइट सेल्स हैं ऑफ द विस्ट्रल लेयर दैट आर मेकिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ग्लोमेरुलस, राइट। पीछे हम लोगों ने एक टर्म यूज़ की, दैट इज़ रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल मीन द टिब्यूल और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ रीनल और किडनी, राइट। इट लीव्स फ्रॉम ग्लोमेरुलस। ये कहाँ से निकलता है? ग्लोमेरुलर कैप्सूल से। एंड होता है टिप ऑफ मेड्यूलरी पायरामिड, जिसको कि मैंने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के अंदर शो किया था। कप शेप स्ट्रक्चर थे पायरामिड्स के फॉर्म शेप के स्ट्रक्चर से। दे आर अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके 4 मेजर रीजन्स हुआ करते हैं रीनल टिब्यूल के। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसको पीसीटी कहते हैं, नेफ्रॉन लूप होता है। थर्ड पार्ट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दिस इज शॉर्टली नोन एज डीसीटी। एंड द लास्ट पार्ट इज कलेक्टिंग डक्ट, राइट। दिस इज द नेफ्रॉन्स टिब्यूलर सिस्टम। इसके अंदर वन आपके पास दिया हुआ है, ये वाला, दिस वन। दिस इज द प्रॉक्सिमल टिब्यूल। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होंगी, आउट होंगी, और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ होती हैं उसकी भी डिटेल दी हुई है कि यहाँ पे पानी होता है, पोटेशियम आयंस होते हैं, अमोनिया होता है, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयन हुआ करते हैं। और ये जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल है ये रीनल के कॉर्टिकल रीजन के अंदर मौजूद हुआ करते हैं, यानी आउटर रीजन के अंदर हुआ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये शेप किडनी की ड्रॉ करते हैं तो ये जो प्रॉक्सिमल टिब्यूल है ये इस रीजन में हुआ करता है, ठीक है। जबकि अगर हम इस ट्यूब शेप की बात करते हैं, इस ट्यूब की बात करते हैं, तो ये यहाँ पे हुआ करती इस पोर्शन के अंदर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अमोनिया और हाइड्रोजन आयन इन हो रहे होते हैं, जबकि बाइकार्बोनेट पानी और पोटेशियम आयन यहाँ से आउट हो रहे होते हैं। उसके बाद बाकी जो फिल्ट्रेट होता है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में आ रहा होता है, राइट। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर, डिसेंडिंग में नीचे आने वाली लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, हेनले साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था और इसके ऊपर काम किया था, राइट। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले मीन नीचे आने वाली लूप। इसके अंदर क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ करते हैं। यहाँ से कुछ हाइलाइट्स को हम रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ करते हैं, और बाकी जो फिल्ट्रेट जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर जाता है तो वहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है उसका रीअब्जॉर्प्शन हुआ करता है, ठीक है। रिमेनिंग फिल्ट्रेट गोज टू द डिस्टल ट्यूब्यूल, राइट। और यहाँ पे अगेन फर्दर रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड वाटर, जबकि पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे इन हुआ करते हैं फॉर बैलेंसिंग ऑफ द पीएच, राइट। उसके बाद फिल्ट्रेट आता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड हुआ करता है, और बाकी जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से आउट हो जाता है थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। और इस रिमेनिंग फिल्ट्रेट के अंदर जो सब्सटेंसेस रह जाते हैं उसमें मोस्टली होता है यूरिया और वाटर, राइट। यहाँ पे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल भी आप लोग बताया था कि वो कौन सा रीजन है, ठीक है। ये रहा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड का रीजन। उसकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं, इसे मैंने इसको फिर से हाईलाइट कर दिया है, राइट। दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पीसीटी। इट अराइजेस फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैप्सूल। लॉन्गेस्ट हुआ करता है, मोस्ट कॉइल रीजन हुआ करता है ऑफ द नेफ्रॉन। दिस लाइज इन द कॉर्टेक्स रीजन ऑफ द किडनी, lined by simple cuboidal epithelium and with brush borders which help to increase the surface area of the absorption, right। इसके अंदर prominent microvilli हुआ करते हैं। microvilli mean blood capillaries हुआ करते हैं, और
इसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, राइट। लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, ये नेफ्रॉन्स लूप की बात करते हैं, ये यू शेप हुआ करती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की बात की थी, राइट। उसको दोबारा से हाईलाइट कर देते हैं अभी आप लोगों के लिए। यू शेप हुआ करती है, मेडुला के अंदर हुआ करती है, इसके दो पार्ट्स हुआ करते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे फिर से आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिखा देते हैं। ये डिसेंडिंग है और ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, राइट। इनकी आगे हम लोग जाके डिटेल देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट ascending limb of loop of Henle. The ascending limb of loop of Henle is divided into two segments. The lower end of ascending limb is very thin and is lined by simple squamous epithelium, while the distal portion of the ascending limb is thick and it is lined by simple cuboidal epithelium. ये cuboidal epithelium क्या है, squamous epithelium क्या है? Again you have to recall the chapter number 4 of book 9, right? Thin ascending limb of loop of Henle and thin ascending limb of loop of Henle. They enters and become DCT, distal convoluted tubule. अब distal convoluted tubule क्या है, उसको भी recall कर। this is distal convoluted tubule, ठीक है। इसकी बात हम करने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाई थी उसमें इसको DTC भी कहा करते हैं, ओके। सो ये कॉइल्ड इन स्ट्रक्चर हुआ करता है, डिस्टल टू द नेफ्रॉन लूप दूर हुआ करता है, शॉर्टर होता है दैन द पीसीटी, लेस कॉइल्ड होता है पीसीटी से। पीसीटी क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो इनिशियल पार्ट था एक साइड पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हुआ करता है और दूसरी साइड पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हुआ करता है, राइट। इसके अंदर कम होते हैं माइक्रोविलाई, कॉन्ट्रैक्ट्स एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, contact efferent and efferent arterioles and contact with peritubular capillaries। दो तरह के कनेक्शंस ये प्रोवाइड कर रहा होता है, राइट। यहाँ पे अगेन आप लोगों को डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल डीसीटी और उसका स्ट्रक्चर भी बताया जा रहा है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट को भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। हम कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। ये रहा आप लोगों के पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल स्टार्टिंग में, ठीक। यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये प्रॉक्सिमल यहाँ से आउट हो रही हैं, फिर ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और इसके बाद ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। ये पूरे नेफ्रॉन का एक रफ सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो भी फिल्टर्ड होके यूरिन बना है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आ रहा है, राइट। इस कलेक्टिंग डक्ट की बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये वाली। इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट राइट बहुत सारे नेफ्रॉन हुआ करते हैं जहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट यूरिन को कलेक्ट कर रही होती है, ओके। गाइज आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि क्या आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आई है या नहीं, क्योंकि मुझे बार बार लगता है कि शायद आप लोग टर्म्स को भूल जाएंगे, इसलिए मैं बार बार इन डायग्राम्स को दोबारा से हाईलाइट कर। दीज आर द फंक्शंस ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ सेवरल नेफ्रॉन एम्प्टी इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी, ठीक है। आपको फिर से दिखा देते हैं। ये रही डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक ये रही, ठीक है। ये रही यहाँ पे दूसरे नेफ्रॉन की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, ये सारी की सारी एम्प्टी होती हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। Sorry, I had to change the slide, right? So distal convoluted tubules of several nephron empty into the collecting duct. This collecting duct passes into the medulla. Several collecting duct merge into the papillary duct. अप्रॉक्स 30 जो कलेक्टिंग डक्ट है वो एक पेपलरी डक्ट के अंदर कंबाइन हुआ करती हैं एंड दे ड्रेन द यूरिन इनटू द माइनर कैलिक्स। दिस इज़ द किडनी लोब, जहाँ पे डिफरेंट नेफ्रॉन्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, उनकी कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही हैं, ठीक है। दिस स्लाइड इज़ अबाउट द डिफरेंट classes of nephrons. So there are two general classes of nephron that are cortical nephrons. These are the nephrons that are present in the cortical region or the cortex region of the kidney. Second is juxtamedullary nephron, which are classified according to the length of their loop of Henle and location of these
nephrons in the renal corpuscle, right? All nephrons have their renal corpuscle in the cortex region. Cortical nephrons have their loop of Henle in the renal medulla. कॉर्टिकल रीजन आउटर रीजन था किडनी का, जबकि मेड्यूलरी रीजन जो है इनर पोर्शन ऑफ किडनी है, राइट? सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैव देयर लूप ऑफ हैंडली इन द रीनल मेड्यूलर नियर इट्स जंक्शन with the renal cortex. Loop of Henle of juxtamedullary nephron is located deep into the renal medulla, right? यूरिन फॉर्मेशन का एक ओवरव्यू है. ब्लड प्लाज्मा जो है उससे यूरिन बनता है, 4 स्टेप्स में बनता है. ग्लूमेरुलस के अंदर पहले फिल्ट्रेशन हुआ करती है, ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन हुआ करती है और ट्यूब्यूल्स में ही सिक्रीशन हुआ करती है टू बैलेंस द पीएच ऑफ द यूरिन. एंड देन वाटर कंजर्वेशन हुआ करती है. वाटर कंजर्वेशन मीन डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर यूरिन में से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हुआ करता है. ओके, यूरिन फॉर्मेशन के यहाँ पे अगेन 4 स्टेप्स की बात की हुई है. फर्स्ट, glomerulus filtration that creates a plasma like filtration of the blood. Second, tubular reabsorption, जहाँ पे ये एरोज की फॉर्म में पानी बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है आप लोग को. दैट इज़ tubular reabsorption removes useful solutes from the filtrate. फिल्ट्रेशन के बाद जो नीचे लिक्विड आ रहा है, फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें से यूज़फुल सब्सटेंसेस को ये दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेगा और वो दोबारा से आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन वो जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो फिर से खून का हिस्सा बन जाएंगे. थर्ड, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ये ट्यूब्यूलर सिक्रीशंस क्या करती हैं? रिमूव एडिशनल वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, एड्स देम इनटू द फिल्ट्रेट. ये रीएनालाइज करते हैं और फिर से अगर कुछ एडिशनल वेस्ट बच गए हैं उन्हें दोबारा से क्या है ब्लड से निकाल कर फिल्ट्रेट के अंदर एडअप करते हैं. फोर्थ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर. दिस रिमूव्स वाटर फ्रॉम द यूरिन एंड रिटर्न इट again into the blood and as a result the urine become concentrated. ठीक है, यहाँ पे हम बात करें अगर तो इस पोर्शन के अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ फिल्ट्रेशन हो रही है, यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है. उसके बाद अगेन जो है अगर यूज़फुल मटेरियल्स हैं तो उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है, वेस्ट मटेरियल्स हैं तो उनको दोबारा से इन किया जाता है, ठीक है. एक्स्ट्रा पानी को भी अब्जॉर्ब किया जाता है और जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है उसको कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू कलेक्ट कर लिया जाता है, राइट. सो दैट इज़ अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन एंड द कलेक्शन ऑफ. किडनी फंक्शंस की बात करते हैं कि किडनी का काम क्या है. इट रेगुलेट्स द ब्लड वॉल्यूम, द ब्लड प्रेशर. इट रेगुलेट द फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी के डिफरेंट जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, आयंस हैं, उनको रेगुलेट कर रहा होता है. सिक्रीट रेनिन, दैट इज़ द सिक्रीशन. सिक्रीट एरिथ्रोपोएटिन, ये हार्मोन है, इसको सिक्रीट कर रहा होता है. इसके अलावा ये रेगुलेट कर रहा होता है एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है. सिंथेसाइज करता है विटामिन डी को, जिसका कि यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम दिया हुआ है, दैट इज़ कैल्सिट्रियोल. डिटॉक्सिफाई करता है फ्री रेडिकल्स को, हमारी बॉडी के अंदर आने वाली ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करता है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है. ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन ग्लूकोज की डिफरेंट सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्जन भी कर रहा होता है, ठीक है. यूरेटर की बात करते हैं. यूरेटर वो नालियाँ जो कि किडनी से दोनों किडनी से यूरिन को लेकर बाहर निकल रही हैं, ठीक है. पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब्स होते हैं. दे आर एक्सटेंडेड फ्रॉम रीनल पेल्विस टू द ब्लैडर. ब्लैडर वो पाउच है जहाँ पे यूरिन टेम्परेरी स्टोर होगा किडनी से निकल के, राइट. ऑब्लिक एंट्री इनटू द ब्लैडर प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ यूरिन. होता क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ड्रॉ करके बताते हैं कि दोनों साइड पे जो किडनीज होते हैं वहाँ से ट्यूब निकल रही होती हैं. दीज ट्यूब्स आर नोन एज यूरेटर. ये ट्यूब फिर इस तरह से होकर नीचे एक ब्लैडर बनता है इस शेप में, उसके अंदर एंटर हो जाया करती हैं, ठीक है. इसको मैं ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बाद में इसको एडिट करना है तो ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, राइट. सो हाँ, यहाँ पे हम बताते हैं कि 2 किडनीज होंगे, राइट, और उनमें से ट्यूब्स निकलती हैं, कुछ इस तरह की ट्यूब्स निकलती हैं और ये ट्यूब फिर बाद में जाके एक पाउच शेप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज यूरिनरी ब्लैडर, उसके अंदर एम्प्टी हुआ करती हैं, राइट. तो ये कहाँ से निकल रही है? रीनल पेल्विस से निकल रही हैं.
और जाके कहाँ पे एंटर हो रही हैं, ब्लैडर के अंदर। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। इसी से रिलेवेंट हमने स्टार्ट में डायग्राम भी दी थी। ठीक है, एनी हाउ, सो हिस्टोलॉजी ऑफ यूरेटर की बात करते हैं। हिस्टोलॉजी में टिश्यू स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके ये 3 लेयर्स हुआ करती है। म्यूकोसा मस्क्यूलरिस हुआ करती है, ये फर्दर 2 लेयर्स पर कंपोज होती है, कंसिस्टेंट होती है। इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर एंड आउटर सर्कुलर लेयर। यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरेटर का एक टीएस दे रहे हैं। टीएस मीन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ यूरेटर दे रहे हैं कि अगर ये शेप है यूरेटर की, लॉन्गिट्यूडनल है सपोज, अगर इस तरह का एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यूरेटर का, तो हमने उसका एक कटेड सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, और थर्ड लेयर इसकी होती है एडवेंटिशिया, और ये कनेक्टिव टिपिकल कनेक्टिव टिश्यूज से कंपोज हुई भी होती है। राइट, these are the functions of ureter, that it carries the urine from kidney to the urinary bladder via peristalsis. Right, peristalsis क्या है? rhythmic contraction of smooth muscles। कि ये जो यूरेटर होता है इसके डिफरेंट पोर्शंस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, जिसकी वजह से यूरिन आगे की तरफ मूव किया करता है। राइट, इट एंटर्स ब्लैडर फ्रॉम बिलो, नीचे की तरफ से आता है, जिसकी वजह से बैक फ्लो प्रिवेंट हो जाया करता है। एंड प्रेशर फॉर्म फुल ब्लैडर कंप्रेसेस, इसका प्रेशर जो है वो कंप्रेस करता है ब्लैडर को। यूरेटर प्रेशर फ्रॉम फुल ब्लैडर कंप्रेसेस यूरेटर एंड प्रिवेंट बैक फ्लो। जब यूरेटर ब्लैडर फुल हो जाया करता है तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ता है यूरेटर्स के ऊपर और ये बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बैक फ्लो ऑफ यूरिन जो है वो प्रिवेंट हो जाया करता है। दे हैव स्मॉल डायमीटर, ईजिली ऑब्स्ट्रक्टेड और इंजर्ड बाय किडनी स्टोन्स। अगर किडनी स्टोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, किडनीज़ के अंदर, और वो यहाँ पे आ जाते हैं तो इनकी लाइनिंग डेलिकेट हुआ करती है, जिसकी वजह से ये ईजिली इफेक्ट हो जाया करते हैं। राइट, ये जो रीनल कैल्कुली की बात करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनी स्टोन्स that are usually the deposits of calcium. So urinary bladder की बात करते हैं, उस पाउच की बात करते हैं, that is forming a pouch like structures। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर ये बना रहा होता है। ये मस्कुलर सैक हुआ करता है, ये स्टोर करता है यूरिन को, और जब ये फुल हो जाता है तो ये यूरिन को एक्सपेल कर दिया करता है। ठीक है, फुल जब ब्लैडर होता है यूरिन से भरा हुआ होता है तो ये स्फेरिकल इन शेप हुआ करता है और ये एक्सपेंड कर जाता है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, पेट की कैविटी तक ये एक्सपेंड कर जाता है। और एम्प्टी ब्लैडर की अगर हम बात करते हैं, लाइज इंटायरली विद इन द पेल्विस, ये छोटा सा होके फ्लैट होके पेल्विस के अंदर ये सिर्फ पेल्विस तक रह जाया करता है। ठीक है, रिंकल, अगर यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके अंदर रिंकल्स हुआ करते हैं। दिस इज ओपनिंग ऑफ द यूरेटर, कॉमन साइट फॉर ब्लैडर इन्फेक्शन। ओपनिंग्स ऑफ द यूरिनर आर द कॉमन साइट्स फॉर ब्लैडर इन्फेक्शन, कि जहाँ से यूरेटर जो होते हैं एंटर हो रहे होते हैं ब्लैडर के अंदर। राइट, वहाँ पे अगर ये हम कहते हैं कि यूरेटर है और यहाँ से ब्लैडर में एंटर हो रहे हैं, तो ये वाली जो जगह है, ये यहाँ पे इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉज हुआ करते हैं। ठीक है, this is a short overview of urinary system. Kidney produces the urine. Ureters, जो कि 2 ट्यूब्स की बात की है, they transport the urine to bladder. Urinary bladder स्टोर करता है यूरिन को, and urethra is the exit point of the urine to the exterior of the body. बॉडी से बाहर निकलने के लिए। ठीक, these are some functions of the urinary system. Homeostatic regulation of blood plasma, regulating blood volume and pressure, regulating plasma ion concentration, stabilizing the blood pH by abstracting the waste materials, right, conserving the nutrients that are again useful for the body, right, it filters many liters of fluid from blood, excretion करता है the removal of organic waste product from the body fluid, और वो ऑर्गेनिक वेस्ट कौन कौन से होते हैं? यूरिया होते हैं, यूरिक एसिड होते हैं, कैरेटिनाइन। एलिमिनेट करता है द डिस्चार्जेस ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इनटू द एनवायरनमेंट। ठीक है, so guys, this is all for the urinary system of human beings. I hope this video is helpful for you guys. Do comment on this whether it is helpful or not, or how much it is helpful for you guys. Thank you so much.